Good morning, dear students. This is GK class of class 6. Students, today we will cover these topics. First is the weather, second bottle tornado, third is pollution, and fourth is say no to plastic bags. Okay, so let's start with first chapter, weather. So students, weather is the state of atmosphere at a particular place and time and described as heat, cloudiness, dryness, sunshine, rain, wind, etc. So there are a lot of components to weather. So let's check how much we know about the weather. Okay. So some questions we have in this chapter. So write the answers with me. Open your books, page number 26, and fill the right answers. First question, who invented the mercury thermometer? So note down the correct answer. Daniel Gabriel Fahrenheit. Daniel, D-A-N-I-E-L, Daniel. Gabriel, G-A-B-R-I-A-L, Gabriel. Fahrenheit, F-A-H-R-E-N-H-E-I-T. Okay, Fahrenheit. Question number 2, which one of these revolving weather system is the smallest? वेदर सिस्टम में कुछ ये 3 टाइप्स हैं, जैसे ह्यूरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो, ट्रॉपिकल साइक्लोन. ये एक तरह के जब बहुत भवंडर या आंधी तूफान होता है ना, ये उन्हीं के कुछ टाइप्स हैं. तो इनमें से सबसे स्मॉल जो है वो है टॉर्नेडो. हालांकि इसका मीनिंग भी भवंडर है. ओके, टॉर्नेडो. बाकी जो साइक्लोन वगैरह है वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा हवाएं बहुत तेज चलती हैं. ठीक है, काफी डेंजरस होते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ पिंक स्नो इन कैलिफोर्निया, सीरिया, नेवाडा माउंटेन्स दैट इज कॉल्ड वाटरमेलन स्नो? रीजन क्या है इसका? रेडिश कलर्ड एल्गी. रेडिश कलर्ड एल्गी. ओके, तभी इसको वाटरमेलन स्नो कहते हैं. इसका कलर जो है वो रेडिश कलर्ड है और एल्गी है वो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कॉमन टर्म रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन द एयर? अभी भी जैसे रेनी सीजन है, तो जब रेनी सीजन वगैरह में क्या होता है कि जो एयर होती है उसमें वाटर वेपर होता है, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी होती है. ठीक है, तो ह्यूमिडिटी इज कॉमन टर्म दैट वी विल यूज we can use in rainy season. Next question, what is O3? O3 means ozone. O-Z-O-N-E. Question 6, what is above? This is the type of sandstone. Okay, sandstone. जो रेगिस्तानों में जो स्टॉर्म आते हैं ना, तूफान आते हैं, ये वो है, उसी का एक टाइप है. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ क्लाउड इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म? Cumulonimbs. Cumulonimbs. Spelling C-U-M-U-L-O-N-I-M-B-U-S. Okay. ये क्लाउड्स के टाइप हैं जो थंडरस्टॉर्म में एसोसिएट होते हैं, इकट्ठे होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द हेवीएस्ट रिकॉर्डेड हेलस्टोन्स वेटेड अप्रोक्सीमेट 25 ग्राम, 150 ग्राम, 500 ग्राम और 1 kg. इसमें सबसे हैवीएस्ट रिकॉर्ड जो अभी तक किया गया है वो है 1 kg हेलस्टोन का. आंसर इज 1 kg. Breeze and gale are common terms used to describe the speed of what?
Wind. Answer is wind. Question number 10. What is the color on the inside of the rainbow that is generally defined in the 7-colored rainbow? Violet. रेनबो के इनसाइड का जो कलर होता है वो वायलेट होता है, जिससे वो 7 कलर्स आपको नजर आते हैं इसमें. ओके, ये आफ्टर रेन होता है, जब रेन के बाद सन आता है तो उसमें ये कलर आपको नजर आते हैं, रेनबो बनता है जब. ठीक है. देन 11th क्वेश्चन. व्हाट कॉमन टर्म रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर जोन? आंसर इज Coriolis effect. Coriolis effect. जब हाई प्रेशर का एयर होता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है एयर की, that term we can use, that is the Coriolis effect. Next, 12th question. True or false? A rainbow is a spectrum of light that appears when the sun shines onto water droplets in the air. Yes, this is true. Next chapter, Bottle tornado. So students, in this chapter, this is an experiment. So you will need 2 plastic bottles to do this experiment. Second thing, rubber washer. Third is electrical tape. Fourth is water, and fifth is food coloring. This is optional. If you want to add food coloring, then fifth item is you can add. Okay. So in this experiment, we will study about the force and pressure concept. What is the force and pressure concept? So student, the water is held in the top bottle by the air pressure in the lower bottle and the surface tension of the water in the washer. इसमें क्या है कि जब भी हैवी चीज का प्रेशर, हैवी वेट, जिसका हैवी वेट रहता है उसका प्रेशर जब दूसरी जगह पे डालेंगे, जिसका लो प्रेशर है, तो उस केस में ये एक्सपेरिमेंट है आपके पास. तो जिसका हैवी प्रेशर है वो टर्न करेगा नीचे की तरफ. लाइक फर्स्ट स्टेप, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना. फिल वन ऑफ द बॉटल अबाउट 2/3 फुल ऑफ वाटर, एड सम फूड कलरिंग इफ यू विश. आप 2 बॉटल्स ले रहे हो तो उसमें से एक बॉटल ले लो, उसमें 2/3 वाटर जो है उसको फिल कर देना. ओके, उसमें आप कोई भी फूड कलर ऐड कर दो, जैसे रेड, ब्लू, कुछ भी. ओके. एंड सेकेंड स्टेप, पुट द वॉशर अबाउट ओवर द माउथ ऑफ द फिल्ड बॉटल. जिसको आपने फिल किया है उसके ऊपर वॉशर लगानी है. ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, देखो सेकेंड पिक्चर. इसमें वॉशर आप ऐड करेंगे. टेप इट इन प्लेस. इसको बहुत अच्छे से पेस्ट कर देना, मतलब टेप के साथ इसको अच्छे से लगाना है. लीविंग द होल ओपन, लेकिन इसका जो होल है वो ओपन रहना चाहिए. ओके, अदरवाइज इसको पूरा टेप के साथ इसको आप फिक्स कर दो. देन थर्ड स्टेप, बैलेंस द माउथ ऑफ द सेकेंड बॉटल ऑन टॉप ऑफ द वॉशर. अब एक और बॉटल जो खाली है बिल्कुल, उसको उसके नीचे, मतलब उसके साथ अटैच करना है आपको दोनों बॉटल्स को. ठीक है, जैसे ये पिक्चर में दिखा रहे हैं, दोनों बॉटल्स को आप अटैच कर दो. बैलेंस द माउथ ऑफ द सेकेंड बॉटल ऑन टॉप ऑफ द वॉशर. फास्टन द 2 बॉटल्स टुगेदर विद इलेक्ट्रिकल टेप. इसको भी आपने अच्छे से फिक्स कर देना है टेप के साथ. एंड देन टर्न द बॉटल ओवर. जैसे ही फोर्थ स्टेप में आप इसको टर्न करेंगे, मीन्स जिसमें पानी है वो बॉटल ऊपर करनी है और जो खाली है उसको नीचे. ओके, तो पानी वाली बॉटल ऊपर आएगी जिसमें आपने कलर और वाटर डाला है. तो होल्ड द बेस ऑफ द एम्प्टी बॉटल एंड मूव द टॉप वन इन रैपिड सर्कल्स. इसको आपने होल्ड करना है इस बेस पे, सेंटर में से इसको पकड़ के रखना है. अब आप यहाँ से क्या चेक करोगे, यहाँ आप फिफ्थ स्टेप you will observe कि let go to the of the bottles and water should flow into the bottom. कि जो वाटर है वो नीचे की बोतल में आना स्टार्ट हो जाएगा. अब इसमें जो ये आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फोर्सेस एंड
प्रेशर। इसका मीन्स यह है कि द वाटर इज हेल्ड इन द टॉप बॉटल बाय द एयर प्रेशर इन द लोअर बॉटल। जब भी, क्योंकि जिसको आपने 2/3 वाटर से फिल किया था उसमें 1/3 एयर है, तो जैसे ही आप उसको उल्टा करोगे तो पानी जो है, पानी के ऊपर एयर उसके ऊपर प्रेशर करती है, एयर के प्रेशर की वजह से वाटर जो है वो नीचे की तरफ फोर्स होगा। ओके, एयर और सॉरी फोर्स एंड प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और स्पेशली एरिया, जब आप उसमें वॉशर लगा दोगे तो उसको निकलने का जो एरिया है वो बहुत कम हो जाएगा। उसका एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ओके, so the water is held on the top bottle by the air pressure in the lower bottle and surface tension of the water in the washer, जो surface जो surface है उसका tension of the water जो washer के ऊपर है, spinning the bottle creates in turning force in the water that breaks the surface tension allowing the water to flow। अब इससे क्या होगा कि जो विंड है उसके अंदर जो एयर है वो उसको प्रेशर करती है वाटर को, और वो उसकी वजह से नीचे की जो बॉटल है उसमें वाटर जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो द एयर इन द लोअर बॉटल इज देन फोर्स्ड ऑन टू द टॉप। जो एयर नीचे की बोतल में तो पूरी एयर भरी हुई थी, अब उसमें पानी जाना शुरू हो गया है, लेकिन वहां की जो एयर है वो उसको रोकने की कोशिश करेगी, तो इसलिए बहुत स्पीड से ही वाटर नहीं फ्लो होगा, या तो ड्रॉप्स में जाएगा या फिर बहुत ही लो क्वांटिटी में ये जाएगा, स्लो, ठीक है, बहुत फास्ट में जाएगा। रीजन क्या है इसका? एयर के साथ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉल्यूशन। The earth is constantly changing, so earthquakes, floods and other natural forces can alter the planet. So in addition, there are some ways human actions pollute the environment. ये जो चीजें हैं अर्थक्वेक वगैरह इन सब से तो है ही है प्रॉब्लम नेचर को, लेकिन जो इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमारी जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होता है। व्हाइल रीडिंग unscramble the jumbled words given in bold। आपके पास जो ये गिवन है ना, ये देखिए पैराग्राफ्स, इनके अंदर कुछ जम्बल्ड वर्ड्स गिवन है। ये देखिए जम्बल्ड वर्ड मींस वर्ड तो कंप्लीट होगा बट उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। सो राइट देम करेक्टली इन द बॉक्स टू डिस्कवर द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन पोल्यूटेंट्स। ये सारा टॉपिक जो है वो पोल्यूशन से रिलेटेड है, और जो इसके आंसर्स होंगे वो आपको जम्बल वर्ड में गिवन है उसी पैराग्राफ में, आपको उसको करेक्ट करके आंसर्स लिखने हैं। ओके, सो फर्स्ट इज, दिस इज अ जम्बल वर्ड। फर्स्ट वर्ड is formed when water vapor in the air combines with SO2 and NO2 to form sulfuric and nitric acid. It falls to the ground, damaging trees and other plants. It poisons streams, rivers, and lakes. Fish and other aquatic animals fall ill or die in the poisoned water. It eats away the stones, thereby destroying buildings. तो इसकी वजह से क्या क्या होता है, तो वाटर वेपर में, एयर में क्या होता है, कंबाइन होता है SO2 और NO2, जिसको कि आप सल्फ्यूरिक और न्यूट्रिक एसिड्स बोलते हैं, और ये ऊपर से नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ फॉल होती हैं। इससे ट्री डैमेज हो जाते हैं, अदर प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं। ये पॉइजन की तरह ही होती हैं। रिवर्स में जब ये आती हैं, लेक्स में गिरती हैं, स्ट्रीम्स में, तो ये उनको भी पॉइजन कर देती है। फिश और अदर जो एनिमल्स हैं उसकी वजह से, इसकी वजह से वो लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि पॉइजन वाटर में वो रहते हैं। जिस वाटर में ये गिरती हैं उस वाटर को भी ये पॉइजन कर देती है। सो इट ईट्स अवे द स्टोन्स, thereby destroying buildings। अगर ये किसी स्टोन्स वगैरह पे गिरती हैं तो उन बिल्डिंग्स को भी ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो क्या है ये एसिड रेन। ओके, नोट डाउन द करेक्ट मीनिंग, एसिड रेन। सेकेंड,
The greatest danger to wildlife is caused by non-organic. ये जो डार्क कलर में है दैट इज द आंसर, बट दिस इज अ जंबल वर्ड, तो इसको भी मैं डैश वर्ड यूज करती हूँ. सच एज प्लास्टिक, मेटल, ग्लास दैट टेक्स मंथ्स, years or even centuries to break down. Answer is trash. Trash क्या होता है पता है? कचरा. Greatest danger to wildlife is caused by non-organic trash. Non-organic trash जो कचरा होता है ना, उसमें नॉन ऑर्गेनिक सच है जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की पॉलीथीन्स या मेटल्स या फिर ग्लासेस जो कि बहुत सालों तक ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है ना, पता है आपको. तो ये बहुत डेंजर है किसके लिए? स्पेशली वाइल्ड लाइफ के लिए, जंगलों के लिए, जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए. ओके, आंसर इज ट्रैश. थर्ड पॉइंट इज, फर्स्ट जंबल वर्ड इज dash. I'm reading this word is dash. Of earth comes in different forms like agricultural pesticides used to kill insects, herbicides which kill weeds, and fertilizers used to enrich the soil, as well as the chemical waste products of factories causes damage to people and wildlife. ये अर्थ में बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में आती हैं. एक तरह से एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स हैं जो कि नुकसान करते हैं उनकी एग्रीकल्चर को. हेर्बिसाइड्स हैं जो वीड्स को खाते हैं, एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड टू एनरिच द सॉइल. तो ये कौन से केमिकल्स हैं? ये केमिकल्स कॉन्टामिनेशन. ओके, जंबल वर्ड्स गिवन है ऊपर, कॉन्टामिनेशन, chemical contamination. This is the correct word. Fourth point, again first word is jumble word, blinds, suffocates and kills sea creatures. It also harms the birds and land animals that come into contact with polluted water or food sources. Answer is oil spills. Correct word is oil spills. इसकी वजह से बर्ड्स और लैंड एनिमल्स को भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है ये चीजें, ऑयल स्पिल्स. और इससे भी वाटर पोल्यूशन होता है. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट इज एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम कार, trucks, smoke from burning of wood, factory emissions, and certain chemicals processes release particles into the air. ये जो स्मोक इतना आता है ना, जैसे पोल्यूशन होता है ना कार व्हीकल्स वगैरह का, जो वहां से धुआं निकलते हैं, स्मोक निकलता है, या कोई फैक्ट्रीज चलती हैं वहां से जो स्मोक होता है, तो इन ये सारा स्मोक सारा ऊपर स्काई की तरफ, आसमान की तरफ जाके इकट्ठा हो जाता है ना. सो दी ये उसके पार्टिकल्स, उसमें काफी केमिकल्स के पार्टिकल्स भी इकट्ठे हो जाते हैं उसमें. सो दीज पार्टिकल्स कंटेन पोल्यूटेंट which can get trapped in the air close to the ground. So this then jumble word is especially harmful to the elderly and people with asthma and other breathing problems. ये इतने ज्यादा हार्मफुल होते हैं कि इसमें जब सांस लिया जाए तो इससे बहुत डेंजरस डिसीजेस भी हो जाती हैं, लाइक अस्थमा, और भी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है. तो व्हाट इज द करेक्ट नेम? दिस इज अ स्मोग. SMOG, स्मोग. जब आप विंटर में देखते हो तो वो फोग होती है, जब ऊपर ठंड की वजह से आप देखते हो कि कई बार आसमान में बहुत धुंध सी छाई हुई है, दैट इज कॉल्ड फोग. लेकिन जब ये पॉल्यूशन की वजह से ऊपर धुंध छा जाती है या स्मोक सारा ऊपर चला जाता है, और इसमें क्योंकि केमिकल्स के पार्ट भी एडिड है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मोग. SMOG, स्मोग. ये बहुत डेंजरस है, इसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और इससे काफी अस्थमा जैसी डिसीजेस भी होने के चांसेस रहते हैं.
Next topic, next chapter, next page. Say no to plastic bags. What is the wrong with poly bags? Students, plastic bags are harmful for human beings and animals as well. क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये एज इट इज रहते हैं, जिससे कि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस दोनों के लिए ही काफी ये डेंजरस है, हार्मफुल है. ओके, सो लेट्स रीड फर्स्ट पॉइंट, चॉक्ड ड्रेन्स. सबसे पहले जो ये प्लास्टिक, ये देख रहे हो आप, जो भी प्लास्टिक बैग्स या पॉलीथीन्स वगैरह हैं, ये नालों वगैरह में ये फंस जाती हैं, ड्रेन्स वगैरह में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर ब्लॉकेज हो जाता है. ठीक है, सो लाइट पॉली बैग्स सेटल इन द ड्रेन्स. ड्रेन्स मीन्स वही आगे जैसे इंटरनल है ना सारा सिस्टम आजकल की, तो वो ड्रेन्स वगैरह में फंस जाते हैं. सो दे चॉक गली पिट्स, जो कि नालियां होती हैं गलियों में, कॉजेज बैक फ्लो एंड वाटर लॉगिंग. Polybags induced water logging triggers of landslides in the mountains. इसकी वजह से सारे नालियां वगैरह बंद हो जाती हैं और वाटर ब्लॉकेज हो जाता है. फर्स्ट जो इसका रॉन्ग इम्पैक्ट होता है ये. सेकंड, चॉक्ड सॉइल. मिलियन ऑफ पॉलीबैग्स सेटल इन द सॉइल. सॉइल मीन्स जो मिट्टी वगैरह होती है, उसमें भी पॉलीबैग्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं. तो दे आर नॉन पोरस, उसको ये क्या कहते हैं, जर्जरा. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो उपजाऊपन नहीं रहता उसके अंदर. सो दे ऑब्स्ट्रक्ट द फ्री फ्लो ऑफ वाटर एंड एयर. उसमें ना तो वाटर अब्सॉर्ब होता है और ना ही एयर. थस दे चॉक द सॉइल एंड सफोकेट प्लांट रूट्स. ओके, वो जो सॉइल है उसमें बहुत अच्छी तरह से, मतलब उसका जो उपजाऊपन है वो नहीं, वो खत्म हो जाता है और वो वाटर को और एयर को उसमें अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, जिससे कि प्लांट्स वगैरह इजीली वो अच्छे से नहीं हो पाता, उसमें रूट्स उसमें नहीं टिक पाती हैं. सॉइल भी पॉल्यूटेड होती है. देन एनिमल डेथ. काउ फॉरेजिंग ट्रैश ईट पॉलीबैग्स एंड डाइज. अब देखो जो काउ वगैरह है, जैसे कुछ भी बाहर का खा लेती हैं बाहर, तो उसमें क्या होता है, गलती से खाने के साथ साथ उनके मुंह में पॉलीबैग्स भी चले जाते हैं. सो पॉलीबैग्स आल्सो हार्म मैरिन एनिमल्स. तो उनके लिए वो हार्मफुल हो जाते हैं, अंदर जाके उनको कुछ ना कुछ डिसीजेज हो जाती हैं उसकी वजह से, और फिर वो बेचारे मर जाते हैं. तो ये उसके लिए भी वेरी, दीज पॉलीबैग्स आल्सो वेरी हार्मफुल फॉर एनिमल्स. नेक्स्ट, लिमिटेड रिसाइक्लेबिलिटी. प्लास्टिक रिसाइकलिंग इज लीनियर, नॉट साइकिल. है ही नहीं है साइकिल. प्लास्टिक जो है कभी भी वेस्ट वो कभी भी बंद, ये खत्म नहीं होता है, ये एज इट इज ही रहता है. सो इसकी कोई साइकिल है ही नहीं. सो प्लास्टिक डिग्रेड ऑन रिसाइकलिंग. नेक्स्ट, डिस्पोजल हजार्ड. If disposed through landfills, polybags continue to pollute the soil for many years. If burnt, they emit hazardous gases that pollute the air. अब अगर हम सोचते हैं कि हम अपनी सॉइल को या अपने वाटर को या अपनी आसपास के एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए इसको बर्न कर दें, मीन्स इसको जला दें, तो इससे जो गैस निकलती है वो और भी डेंजरस है, जो कि एयर में मिक्स हो जाती है, और जो अगर हमारे अंदर चली जाएगी तो वो हमारी हेल्थ के लिए और भी ज्यादा हार्मफुल होगी. ठीक है, इसको आप डिस्पोज भी नहीं कर सकते, उसमें भी ये डेंजरस है. Polluting industry. Manufacture of polybags mainly done in small molding shop with no environmental standards, involving hazardous material and emit obnoxious gases, causing serious problems first for the workers and then for the neighborhood. जहाँ पर ये पॉलीबैग्स या प्लास्टिक की ये बॉटल्स या प्लास्टिक का जो सामान बनता है, वो जिस एरिया में बन रहा है, जिन फैक्ट्रीज में बनता है, बनने के टाइम पे भी ये बहुत ही डेंजरस गैसेस इनके निकलती हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर, स्मोक देख रहे हो आप, ऐसे निकल रहा है. ये स्मोक जो है वर्कर्स के लिए, वहां पर रहने वाले आसपास के लोगों के लिए
बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे भी बहुत सारी डिसीजेस हो जाती हैं, इससे भी पूरा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है. ओके, एंड फूड हैजार्ड. Chemical used to manufacture polybags can leach out on into food products stored in them and thereby reach our system. अब आप जैसे क्या करते हो कि मोस्टली जो भी आप मार्केट से जो भी सामान लेके आते हो वो प्लास्टिक बैग्स में लेके आते हो. तो प्लास्टिक बैग्स में जैसे ही वो आप खाने का सामान डालते हो तो उसमें भी कुछ केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं हमारी खाने की चीजों में, जो कि उस खाने के थ्रू हमारे स्टमक में चले जाते हैं, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है, स्पेशली जब आप रेडीमेड फूड जैसे कि सपोज कुछ खाने का सामान लेके आते हो आप गरम गरम, तो उसकी वजह से वो केमिकल ज्यादा रिलीज होता है पॉलीबैग्स का, और वो बहुत ही जल्दी से मिक्स हो जाता है उस आपके खाने में, जो कि दिस इज वेरी हार्मफुल और डेंजरस फॉर योर हेल्थ. ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज अ क्वेश्चन. You will write the answer according to your thing. What one change will you make this week to use less plastic? Okay, so write answer in your words. Okay, एक ऐसा चेंज जो कि आप इस वीक में प्लास्टिक की कम यूज करने के लिए करना करोगे, वो आप इसमें लिखोगे इसका आंसर. ओके स्टूडेंट्स, so students revise all topics and write the correct answers in your books. Thank you students, have a nice day.